and H2S gas purification. Okay. So this is a very critical part before CBG can be used in automotives. Because they contain some 60% methane and Yes. balance is all And the H2S concentration has to go down below 10 ppm. So this is a major challenge for Indian biogas plants to purify the H2S, remove the H2S from the process. Everybody's traveling itself, no? The CBG is going to come up in a very big way. And sir, globally we have over 2,500 clients selling over 10,000 metric tons globally. Sir, this is for purification of CBG. This removes H2S from the process. So it purifies the gas before it can be used in the application. What are these breakers made from? किसकी बनी है? तुलसी। कितने में? 108। Around 730 rupees per case. And the calorific value is higher than coal. So yeah, imported coal, yes, it's a total replacement material. इसका मटेरियल क्या है? Agricultural waste. अच्छा, एग्रीकल्चर For what is the purpose? This is a replacement of boiler. Fuel. It is a fuel. coal replacement. That's a good thing. And the cost of production इसका क्या है? 21,70,000. 21,75,000. 75,000 Per lakh 75,000 is the plant. कैपेसिटी है 1200। ये कितनी साइज? कितना? from 1 ton to 4 ton per hour. 1 ton to 4 ton per hour. एक विलेज में ही लगता है। केजी का 1.5 अभी आप अपना कॉस्ट जो है बहुत कम करके बता रहे हैं। 1500 तो बहुत कम है कंपेयर टू कोयला। सो अब 1500 रुपये पर टन मत बताइए। Production basically we have just launched this product about 2 months back. We have ordered around 100 plus machines. In last service moment. It's a big thing. In fact, requirement of this is going to इसका जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ेगा। So that this is also pallets or It's a we are manufacturing pallet, brick and pallet manufacturing, machine manufacturing. and what is अच्छा machine manufacturing also. Cost आपका क्या है? 21 lakh rupees. Machines. तो NTPC वगैरह पावर प्लांट के साथ सर हम लोग का बात चालू है। इवन O&M भी है। कैप्टिव पावर प्लांट से भी आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जो कोल यूज़ करते हैं Alternative solutions. Hello, sir. How you doing? Take it out. What are you trying to say? We're already here to bring the best technology into India right now. Minimize zero emission power. From Canada, where the hydrogen fuel cell technology born. You know that. You're from Boston, right? Graduate. So you can see hydrogen technology really can decarbonization at this moment. So we have reached this million miles. You know, million miles even out in ICE. Completely Yes. energy is hydrogen driven. Hydrogen go over. What about
heavy duty trucks. Exactly. So we do heavy duty trucks. You see heavy duty trucks. So we targeted for heavy duty trucks. Currently, if any heavy duty trucks company in India, they want to absolutely. We're not just developing those powerful fuel cell stacks and systems as well. And we also have next 2 generation electro materials that can sustain the hydrogen fuel cell market. You have a business card? So you will require around 100 kg in 1 year. 100 kg you will require in 1 year, and the approximate cost is 350 rupees per kg. What is the incoming contamination level of H2S? No, it is 500-600 ppm. Yeah. Yeah, It's like domestic fire. domestic biomass, so 500 ppm. Yeah. So So this is about 1 lakh units per year. 1 lakh. We have recently opened. How much? What's the feedstock? Feedstock is covered. How much carbon does it need per year? So for example, for a farmer with 3 cows, सबसे छोटा जो है 2 cubic meter का हमारा छोटा 3 घंटे की गैस है। उसमें इसको 50 किलो को पानी मिला के 3 घंटे का 70 doing this across now 22 states in the country. How many have you installed? So we done 50,000 cars. And also we are leveraging carbon credit. So now 40,000 का प्लांट है, वो 10,000 से कम में हम किसानों को दे पा रहे हैं. Why? Because we've got 6. So we've got a lot of cooperative dairies who are just, In 1963, I wrote a thesis on global gas plants, benefit cost analysis of biogas plants in India at MIT. oh wow. That I time, think I'll the, dig up that paper if you have. that time the cost of the plant, domestic plant with the floating drum, Yes. was around 300. But sir, at least we are able to, what we have seen is that the affordability was a barrier. There was the only way to do was getting carbon credit. So fantastic. So you have a business card? No. This is what your storage Yes. bag? So this is where the gas gets formed. और एक पाइप के किचन में जाता है, वो वहाँ मिक्स करता है, वो जो टब दिख रहा है वहाँ पे मिक्स करके इंसान सुबह सुबह एक बार मिक्स कर देता है और दिन में उसको 3 घंटे की गैस मिलती है. अलग अलग कैपेसिटी के हमने बना रखी है ना, अलग अलग गाय कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रॉब्लम डालते हैं. और छोटे फार्मर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. वाई? बिकॉज फॉर देम 1200 रुपये का एक सिलेंडर आता है, और 1200 रुपये की महीने का बचा है. तो क्यों नहीं, और हमने कार्बन क्रेडिट के थ्रू 40,000 का प्रोडक्ट 10,000 के नीचे है, तो उसको क्लियर अब दिख रहा है कि नहीं व्हाट इज द बेस्ट. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स वाज अफोर्डेबिलिटी दैट वी हैव बीन एबल टू ब्रेक. So this is the real. और सर इसमें बहुत I wrote a thesis at MIT and for masters in economics in 1963. Benefit cost analysis of biogas plants in India. From all kind of waste, we convert to produce hydrogen. languages with local leaders under local conditions. System of bio uses Electrolysis. You should have also negative effect on the CO2. And we are growing our activities in India. Right? Yeah, we are about to start this kind of plant in India. These are the best times for smallholder farmers to make. From the west. Bajaj Steel ही एक ऐसी कंपनी है which is able to get a technology from the west to India. Torrefaction technology. Now this is a patented technology. आपको तो सब My main problem is concern. After 75 years of independence, we are still importing technology, not exporting. but now we'll be manufacturing it. So once we manufacture it, we'll be able to export it as well.
because this particular company. Till your supplier develops a higher model and you become obsolete unless you buy new technology. No, sir. Eventually, I would contradict on that. Eventually, they have to have a manufacturing base, and the manufacturing base like India, there is no other competition. So, क्वालिफिकेशन शायद सर 2-3 लोग कर रहे हैं, लेकिन प्लांट खाली GSI का ही ऑपरेशनल है विद इडुमिट्स। सर आपका एक रिव्यू चाहिए था आपने सर इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, बट यू नॉट टॉक्ड अबाउट कन्वर्टिंग बायोमास इनटू व्हाट NTPC is trying to do, biomass into coal. Biomass is a fuel to replace coal. Well, I should talk about that. Well-known thing. But biomass can be converted also in ethanol. But it's an expensive technology. Really worry about Which part are you sourcing the biomass from now? In India. Tell him I visited. नमस्कार दोस्तों, ग्रीन एनर्जी को लेके गवर्नमेंट बहुत जल्दी जो है बहुत से चीज़ें जो है आम जनता के लिए सामने ला रही हैं। यहाँ पर अंकित जी हैं हमारे यहाँ पर, और ली मेडन होटल में एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के को लेके कि किस तरह से जो है हम भारतवर्ष से प्रदूषण और पर्यावरण को लेके बहुत सी बातें मोदी सरकार कर रही है और बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं। तो अंकित जी क्या कहेंगे आप किस तरह से भारत के लिए योगदान दे रहे हैं? भारत के लिए योगदान में हमारा एक देश कृषि प्रधान देश है, तो जो अपना खेती के बाद कल्टीवेशन के बाद जो बायोमास वेस्ट की तरफ बच जाता है उसको हमने यूज़ करने के लिए एक पूरी कंप्लीट ऑटोमेटिक लाइन की प्रोसेस की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे कि किसान और उसके जो मैन्युफैक्चरर हैं हमारे बायोमास पैलेट्स के, उनको दोनों को एक आमदनी हो, उनका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो और हमारे देश की जो एनर्जी की खपत है उसमें से हम थोड़ा सा योगदान दे सकें। हमारा जो प्रोडक्ट है मशीन, उनमें बनने वाले सारे पैलेट्स कोयले की जगह बायोमास के बॉयलर्स में यूज़ हो सकते हैं। तो और इसमें जो है कैसे आम जनता तक ये मशीन आपकी या ये प्रोडक्ट पहुँचेगा? हमारा ये जो बिज़नेस है बायोमास का, वो बेसिकली एकदम छोटे छोटे रूरल स्केल पे ही डेवलप किया गया है, जिससे कि सभी छोटे छोटे फार्मर एंटरप्रेन्योर्स मिल के एक बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव और ऑपरेशनल फ्रेंडली है, जिसमें ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है। और जो अपना बायोमास है वो अबंडेंट में है रूरल एरियाज में, आउटस्कर्ट्स में, तो वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी प्लस आउटस्कर्ट्स के सारे जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात है, मतलब आप डिजिटल इंडिया बनाने में और भारतवर्ष से पर्यावरण प्रदूषण को लेके जो है बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस तरह से आपने आम जनता के लिए इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सतेंद्र जी हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा कि किस तरह से प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले था
उससे आप समझ सकते हैं कि अब हमें कोयले का प्रयोग कम करना है और इन चीज़ों का ज़्यादा करना है। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से जो है आप ग्रीन हाइड्रोजन को लेके गवर्नमेंट बहुत सक्रिय है और बहुत जल्दी काम हो रहे हैं देश में, तो क्या आप इसमें योगदान कर रहे हैं भारतवर्ष के लिए पर्यावरण को लेके? बिल्कुल, मैं इस बात पे यही कहना चाहूँगा, जैसे गवर्नमेंट ने भी अगर फ्रंट पे आई है और गवर्नमेंट ने भी फ्रंट पड़ा है, तो गवर्नमेंट ने जैसा कि टारगेट लिया है कि 2023 तक हमको जीरो एमिशन करना है, कार्बन का जीरो एमिशन करना है। तो उससे देखते हुए ना मोस्टली कंपनियाँ अभी बायोमास इस्तेमाल कर रही हैं और कोयले को स्टॉप कर रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों को भी साथ में सरकार का साथ देना चाहिए। दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। तो मतलब अभी जितनी भी खनन जो था कोयले को लेके बहुत से बल करना पड़ता था, वो अब कम होगा, कम धीरे धीरे कम निश्चित तौर पर कम होगा और हमें इससे इन्वायरमेंट में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। जल्दी से जल्दी इन्वायरमेंट में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। कंपनी में जो प्रोडक्ट है उनका भी कॉस्ट कम हो जाएगा बायोमास इस्तेमाल करने से, क्योंकि कोयला महंगा है। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये सब जो है वेस्टेज है, जैसे मतलब धान का जो वेस्टेज है, गेहूं का वेस्टेज है या मक्की का जो वेस्टेज है, उसको लेके बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, खेतों में जो फसलें होती है उसका जो वेस्टेज है, इससे किसानों को भी फायदा होगा, इससे किसानों को भी फायदा होगा और उसको इस्तेमाल किसानों से उस मटेरियल को आप खरीदो, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको जो है उनका भी 2 पैसे उनको भी मिलेंगे, 2 पैसे आपको भी, और जो है और सरकार को भी इसमें हेल्प मिलेगी इन्वायरमेंट के एमिशन को कम करने के लिए, जो कि उन्होंने टारगेट लिया है 2030 तक जो है पूरी तरह से भारत को ग्रीन बना दिया जाए। ग्रीन बना दिया। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इसमें सहयोग है और बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे आपने देखा कि अभी मशीन जो इन्होंने बनाई है राजकोट में बन रही है ये, और इससे जो है एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है जो कोयले की जगह प्रयोग होगा, ताकि जो है हमारे भारतवर्ष में पर्यावरण का बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण को लेके वो ख़त्म होगी। तो पोखिया जी, पहले आप बताएं कि क्या इसमें आपका योगदान है भारतवर्ष के लिए? ग्रीन हाइड्रोजन का ज़माना है, अभी धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट इसमें सक्रिय है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अभी फ्यूचर में जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, ठीक है, उसमें हमको कार्बन कोयले की जगह रिप्लेसमेंट ब्रिकेट को करना ही पड़ेगा। ठीक है, ब्रिकेट क्या है कि एग्रीकल्चर वेस्ट से जो प्रोडक्ट बनता है उसको मिलता है हम ब्रिकेट। ठीक है, ब्रिकेट एग्रीकल्चर वेस्ट में जो हम कंज्यूमर मिलता है उसमें क्या है कि इन्वायरमेंट से कार्बन सोर्सेस करके प्लांट ग्रो होते हैं। ठीक है, वो तो नेचुरल कार्बन सोर्सेस हुआ, वही कार्बन को हम फिर ब्रिकेट बना के जलाते हैं, तो कार्बन इन्वायरमेंट का कार्बन फिर से इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होगा, तो कोई ज़्यादा प्रदूषण नहीं है। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कोयला। कोयला कहाँ से मिलता है? क्योंकि हम खदान करके खीन में से निकाल रहे हैं, करना पड़ता है, ठीक है, जो वर्षों पहले इन्वायरमेंट ने कार्बन को दबा के रखा है उसको हम निकाल के यूज़ करके पोल्यूशन को फिर से इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए जो आपने मशीन बनाई है, ये जो है मेन अहम रोल इसका है। तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर वेस्ट में से जो आपको एग्रीकल्चर वेस्ट मिलेगा, उसको हमारी मशीन उसको प्रेसिंग करके उसको कोयला बनाएगी। इसमें एक्स्ट्रा कोई ऑयल नहीं है, एक्स्ट्रा कोई केमिकल नहीं है, इसका नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, इससे हम कोयला बनाएंगे, आप फिर से यूज़ कर दो बॉयलर में। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है भारतवर्ष में अभी जो है प्रदूषण कम होगा, कम और इसमें आपका भी योगदान रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे पीयूष जी? कुछ नहीं, बढ़िया है। नहीं, आप भी कुछ कहिए, 2 शब्द। भारतवर्ष में जिस तरीके बनाने के लिए आप बहुत सक्रिय हैं और बहुत योगदान कर रहे हैं। तो ये सब नया ये वेस्ट में से बेस्ट बनाने का है, वो मेरा कल भी नेचर था, आज भी है, और हमें आगे भी ऐसा ही करने का है। हाँ, हम लोग को, फार्मर लोग को भी ये जलाना पड़ता था और खेत का जमीन भी जल जाती थी, उसका हमने उपयोग कर दिया। बड़ा एग्जाम्पल अपने पास है, जो परोली जलती है पंजाब हरियाणा में, तो पोल्यूशन तो खामों का निकल गया और हम कोयला निकाल के यूज़ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम हो तो परोली जलाने के अलावा इसमें ब्रिकेट बना के क्यों हम इंडस्ट्री यूज़ में कर ले? बहुत बढ़िया। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट का वेस्ट में से धन्यवाद करना चाहिए। हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ होती हैं कि किस तरह से क्या काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
कल मैंने पूछा कि